કોઈ પહેલા અહીંયા લેક્ચર અટેન્ડ કરેલા છે? ના ના પહેલી વાર નહીં, પહેલા પહેલા. હા તું છે તું તો મોટો તો લાગે છે મને યાર. આટલા ટાઈમમાં મોટો થઈ ગયો કે શું? હા હા હા. પછી બીજું કોણ છે? નવા કોણ છે એકદમ? વાહ. હા ડિસ્ક્લેમર, તમે કોઈ ઓનલાઈન હતા વેડનેસડે વાળા લેક્ચરમાં, રાઈટ? હા ત્યારે મેં વાત કરી હતી કે આઈ મેક પીપીટીસ, બટ મને એવું હતું કે દેટ લેક્ચર વિલ અગેન કમ ઓન વેડનેસડે. ઓકે, એટલે આજે વન મોર ટાઈમ યુ નીડ ટુ રાઇટ એવરીથિંગ વિધાઉટ પીપીટી. વેડનેસડે આઈ વિલ ગેટ બેક ટુ યુ વિથ પીપીટી. હવે અત્યારે વર્ષો જૂનું હોમવર્ક ના કર. હા, પેન એન્ડ પેપર ગાઈસ, એવરીબડી કમ ઓન. હા, વેરી ગુડ. ઓકે, યસ. ધેન લદ્દાખ વુડવર્ક, વુડવર્ક ફ્રોમ લદ્દાખ. અંદર અંદર વાતો નહીં મિત્રજનો. ક્યારે છે તમારી એક્ઝામ્સ? ક્યારે છે? હા બટ મે માં છે તો મને ખબર છે ડેટ્સ. 16 જૂન. પછી બીજી કઈ કઈ છે? 20 પછી 14 મે કઈ છે? સ્લેટ 20 મે. બરાબર. ચલો એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછું તમને લોકોને, દેટ વિલ ગીવ મી એન આઈડિયા કે તમારી પ્રિપેરેશન કેવી છે. તો બી આઈ વિલ આસ્ક વેરી બેઝિક ક્વેશ્ચન. હુ ઇઝ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ યુકે? Excellent. Which party? Labour Party. Which party? You understand how questions are asked. Rishi Sunak is Prime Minister, everyone knows. But who, which party? Conservative Party, right? Next question. Who is the Home Secretary of UK? Very good. Sula Beverman. So something, हाँ Beverman, हाँ very good, हाँ यही है, पता चलना चाहिए. She is the right answer. बराबर है. Why this is important? Because she is of Indian origin. So you should make sure that आपको पिछले 3-4 महीने में या 6 महीने में any Indian origin person getting recognition anywhere, वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए. You should know that information. Yes. Sudha Murthy. हाँ, Sudha Murthy. Ansh not Labour Party, Conservative Party. Yes, yes. मैं कौन है सवाल ना? चलो नेक्स्ट. अभी ये नहीं पता होगा. Who is the Prime Minister of Ireland? Ireland. लिखो क्वेश्चन. Who is the Prime Minister of Ireland? Why? गेस्ट आर्टिस्ट तो मेरे को वो टाइम में ही देखा. Why? He is again an Indian origin person.
Okay. So these are the type of questions that you should look for. ठीक है? यार ये હોમવર્ક છે યાર, બધું હું કહી દઈશ તો તમે શું કરશો? ઘરે જઈને તમારે ભણવાનું છે ને, હજુ વેકેશન ચાલુ નથી થયું તમારું. હવે આગળના 4 વર્ષ વેકેશન જેવું જ છે, કોલેજ. બરાબર ને, એ રિયાલિટી. બરાબર છે. જો ભાઈ હવે ફટાફટ સાંભળજો અને લખજો. And see one more thing. All the lectures are uploaded GK now on the website or portal. Okay. So make sure that you see couple of those. मतलब 1 महीने के 4 ही लेक्चर होते हैं and 1.5 hour each. So if you see 2 videos each day, तब भी आपका GK बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. Okay. I will be focusing on some important topics or some other information in these lectures. Okay. But otherwise, all the lectures are uploaded on the portal till May. હવે જોયેલા લોકો હવે અમને લાગી રહ્યું છે આ બરાબર છે. Till January I think or December, all the lectures are in PPT format. तो वो भी आप देख सकते हो. After January I switch to this oral tradition so that I can cover more content in the classroom. Okay. So वो आप लोग देखना, ठीक है? Because आप सब क्रैश बैच में हो, you can always revisit those lectures. ठीक है? चलो. इसके साथ स्कॉटलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है वो भी देख लेना. प्राइम मिनिस्टर एज इन द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पता है ना? गुड. Now he is of Pakistani origin. So this shows the power of diaspora outside India. Okay. अरे यार, हैम्बर्ग पता है ना आपको? हैम्बर्ग. सर, so Hamburg come from a place in Germany. In the same way, Black Forest pastry खाई है आप लोगों ने. There is again a place called Black Forest in Germany. Okay. ये तो सर से सुना तो फिर मुझे याद आ गया, पढ़ा दिया. ठीक है. Okay guys, चलो. आओ. હવે ખાલી હું જ વાતો કરીશ લેક્ચરમાં અને તમે લોકો ખાલી લખશો. બરાબર છે? ચલો. GI टैग वाला पढ़ लेना. इट्स इन कॉन्स्टेंट न्यूज़. वन मोर थिंग, मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ आपको, वो पढ़ लेना. ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके. देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 तरह की होती है. वन इज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी. ओके. इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बट इन नेचुरल कैटेगरी. देन सम आर इन द कल्चरल कैटेगरी. फॉर एन एग्जाम्पल, है गुजरात में कोई कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है? रानकी वाव आपको पता होगा, 100 की नोट के पीछे आती है ना. इट्स अ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट recognized by UNESCO. And then there is the third category which are called mixed, as in it is culturally also important and naturally also important. ऐसे इंडिया में एक ही साइट है, इट्स इन सिक्किम, विच वी कॉल खानचेनजोंगा. ठीक है, लिख लो. और भाई आप लोग बहुत जो ज्ञानी हो, अहमदाबाद itself is a world heritage city, the first world heritage city. ठीक है.
Now there are close to 42 to 50 sites like this. You should just know where these are located and they are very famous. तो आपको इतना टैक्सिंग नहीं लगेगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ. रेड फोर्ट है, पता होगा आपको कहाँ पे है. फतेहपुर सिकरी है, पता होगा कहाँ पे है. बट यू शुड नो दैट विच इज द फर्स्ट साइट टू बी रिकॉग्नाइज, फर्स्ट साइट टू बी रिकॉग्नाइज as World Heritage Site, and which is the last to get this recognition. Which is the last to get this recognition. In the same way, and यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Most of the United Nations organizations are located in Geneva, लेकिन यूनेस्को का कहाँ पे होगा? पेरिस. Okay, next. ओके, सेकंड रामसर साइट्स. ये कौन सी साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके, रामसर साइट्स, RAMSAR, रामसर साइट्स. देखो, we are celebrating the 75th independence of India. So before 2 years there were few Ramsar sites which were recognized by the international convention. Ramsar क्या है? It's a convention which recognizes some important water bodies which are very essential to preserve and safeguard. Okay, आपको again यही देखना है which is the first Ramsar site that was recognized in India. And lastly मतलब latest, which Ramsar sites are recognized in India. ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. Logically why they are important? Because it is enhancing India's image at an international level. इसके लिए इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. And there is a designated day which we celebrate in February, which is called Ramsar Day. कौन सी डेट पे होता है? Very good. 2nd February. Very good. Chilka Lake. Very good. Chilka Lake was the first one to be recognized. Chilka Lake कहाँ पे आया? ओडिशा. लेटेस्ट कौन सी है वो देखना है. ठीक है, आपको लेटेस्ट कौन सी. एंड रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 इन अ सिटी कॉल्ड रामसर. इसके लिए इसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन 71. एंड द हेडक्वार्टर एंड रामसर इज लोकेटेड इन ईरान. ठीक है, ये दो है जो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए. रामसर साइट्स लेटेस्ट जो ऐड हुई है वो कहाँ पे लोकेटेड है ना, घणी बड़ी ऐड થઈ છે. ओके, देखो, एंड वन मोर थिंग, आई एम ट्राइंग टू मेक योर जॉब इजी. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर थिंग्स वेरी प्रिसाइसली, बट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया कि यार ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है. और कुछ चीज़ के आप नाम पढ़ते हो ना, इट इटसेल्फ विल हेल्प यू कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. सपोज तमिलनाडु की जो साइट्स होगी वाटर बॉडीज की, दे आर सो टिपिकल इन देयर नेम्स कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस वाटर बॉडीज आर लोकेटेड इन तमिलनाडु. ठीक है, नेक्स्ट
ये दो. नाउ लेट अस गो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पढ़ना है? G20. G20 लिखो. G20. ठीक है. Let us understand the formation of G20. G20 was formed in 1999. Okay, and it is an informal group. Informal group. ठीक है. Informal क्यों कहते हैं? Because like United Nations, they don't have their own. हाँ. आप लोग तक हाँ. 1999. Remember, it is not a group of exactly 20 countries. There are 19 countries plus European Union. Understood? There are 19 countries plus European. हाँ, UK it's there in its individual capacity also. And you can't expect any groups without these powers. No, UK is there. Okay. हो गया. It's an informal group. Why? Because see, like United Nations, they don't have their own secretary. But from 2008, all the head of the government या head of the state, कौन होता है? In the case of India, याद रखना, head of the state वो कौन है? President. And head of the government, prime minister. ठीक है? They meet every year in annual summits of G20. First summit कहाँ पे हुआ था? Washington DC. लिखो. इतना बोलता हूँ, फिर आपको लिखना है. So this works on a rotational basis. अब किसकी बारी आई है? इंडिया की. हमने प्रेसिडेंसी कब अज्यूम की? ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1st December 2022 एंड आई हैव टोल्ड दिस डेट्स आर इंपॉर्टेंट. और खत्म कब होगी? 30 November 2023. So for this whole year, who is the president? India. November 2023. President of G20. Huh? President of G20. India is the president of G20. Okay. Now understand. India needs to learn what they need to do for G20. एक साल में करेंगे क्या? That somebody needs to teach India or show the way. So there is a formation within G20 which is called Troika. Troika means a group of 3 countries. मेरी बात सुन लो, बाद में लिखना, मैं बोलता ही लिख लो, समझ लो पहले अच्छे से. ट्रॉइका में क्या होता है? Outgoing country, the country who is president and the country who will be president. ये 3 का ग्रुप होता है. समझ रहे हो? जो ऑलरेडी बन चुका है एक कंट्री, द कंट्री विच itself is the president right now, and the other country who will be the president in the future. So इंडिया बना उसके पहले इंडिया was a part of Troika. तो उसमें कौन कौन था? इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया. अभी this is before India become a president. So Indonesia taught in a way, guided India पहले कि आपको क्या अगले साल करना है, what all you formalities you have to do.
Italy, Indonesia. इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इससे हमें ये पता चलता है कि 2022 का प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडोनेशिया। इससे हमें ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? तो 2022 एक साल पहले इंडोनेशिया। सारे लोग मिले थे इंडोनेशिया में, आइलैंड पे गए थे, पार्टी की थी, बहुत अच्छे फोटोज थे अगर आपने देखा होगा, ठीक है। I read a very funny news. So the Prime Minister of Australia before former, so वहाँ पे उनको कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक दिया होगा इंडोनेशिया में, तो भाई फटाक से पी गए, बट इट वाज अ लिटिल बिट इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक, तो भाई की आंखें लाल हो गई। जल्दी जल्दी अगर आप पी लोगे ऐसा कुछ तो क्या होगा? नाउ इंडिया इज द प्रेसिडेंट, तो अभी न्यू ट्रॉय का फॉर्मेशन क्या होगा? आउटगोइंग तो पहले बन चुका है इंडोनेशिया, इंडिया, और तीसरा कौन है वो आपको होमवर्क लिखो। वो होमवर्क है, तीसरी कंट्री आपको ढूंढनी है, ठीक है। What is the theme this year? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन वैल्यू, ठीक है, याद रख लेना। इंडोनेशिया के टाइम जो समिट हुआ था उसका थीम क्या है? दैट विल बी योर होमवर्क। हो गया? The whole year planning is done under one person, मतलब इंडिया को ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है शेरपा, विच इज अमिताभ कांत। बच्चन मत लिखना, ठीक है, और कोई अमिताभ है तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अमिताभ कांत, ही इज द शेरपा। Sherpa is a person under whose leadership all the formal arrangement, अभी मोदी तो जाएंगे नहीं कि भाई कहाँ पे मीटिंग करनी है, तो there should be somebody, basically they are the official representative of the secretary of head of the state, they are the official representative। ये लोग, बाकी के लोग क्या करते हैं? सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। देखो how all this meeting works, every meeting anywhere, ये लोग सिर्फ जाके ऐसा थोड़ा बहुत आजू बाजू। लेकिन अगर किसी आप, इफ एनी वन ऑफ यू हैव सीन एनी बायलैटरल मीटिंग, तो बायलैटरल मीटिंग में क्या होता है? देयर आर 10 सिविल सर्वेंट्स सिटिंग लाइक दिस, हियर देयर विल बी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हियर फॉर एन एग्जांपल जो बाइडेन, से हाथ बात मिलाते हैं। बाकी का जो काम होता है ना, वो ये बाकी के 10 जन करते हैं, ठीक है। सो शेरपा इज दैट पर्सन। और G20 का इंडिया का शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है, याद रखना। देखो अभी एक चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अगर चाहो तो वो अवॉइड करना। वी ऑलरेडी टुक द लीडरशिप फ्रॉम डिसम्बर, सो फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड्स देयर आर नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर एवरी फील्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, बात समझ लो, इन कच्छ अ मीटिंग और अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स ऑफ ऑल दिस 20 कंट्रीज, दे मेट टू डिस्कस अबाउट टूरिज्म। For trade investment, all these 20 delegates from all this country, they met in Mumbai. So ऐसी बहुत सारी meetings throughout India अभी organize हो रही है, from अरुणाचल प्रदेश to केरला, from गुजरात to again अरुणाचल, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको ऐसा है कि नहीं मुझे सब कुछ पढ़ना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। So आप सिर्फ इतना लिख लो that if you want then you should know कि ये जो मीटिंग्स होती है वो कहाँ पे हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल्चरल की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? समवेयर इन इंदौर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, बिकॉज बहुत सारी मीटिंग्स है। आपको पता होगा अहमदाबाद में U20 करके लिखा हुआ था बीच में, U20, वो क्या था?
अर्बन, सो अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग को लेके जो मीटिंग थी अंडर G20, वो कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद। इन दिस वे देयर आर, वो उसमें कुछ और हुई थी U20, लेकिन अहमदाबाद में हुआ था मेरे ख्याल से। और गांधीनगर क्या है, मुफ्त में आता है बाद में, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे लेके आए तो महात्मा मंदिर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। बिकॉज G20 पे तो क्वेश्चन आने ही वाला है, समझ रहे हो? सो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में कर सकते हो, बट डोंट गो इन टू मच डिटेल। आप सारे एक फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई उतना भी याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। लिख लो ये। लक्ष्य हाँ 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 हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी मीटिंग्स हुई है। अभी मैंने वो क्यों पढ़ाया था, समझो। राइट नाउ वी आर फेसिंग इकोनॉमी चैलेंजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, बैंक्स आर गोइंग अपसाइड डाउन, देयर विल बी अ स्लो डाउन ऑल ओवर द ईयर। आज ही मैंने पढ़ा सुबह उठ के न्यूज़, द नेक्स्ट होल ईयर इकोनॉमी विल बी एट अ स्लोअर प्लेस इन लास्ट 30 years. Okay, so the role of governors become quite important, and that is the reason मैंने वो पढ़ाया था कि भाई गवर्नर की मीटिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन G20. ओके, और कुछ बाकी रहता है G20 में? सेक्रेटेरिएट नहीं है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप। मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के एग्जांपल से बताया, यूनाइटेड नेशन इज अ फॉर्मल ग्रुप, सेक्रेटेरिएट है, देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। G20 में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दे आर ऑब्जर्वर्स इन G20। स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर्स इन G20। वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट ग्रुप, पहले आसपास के पड़ोसी को इज्जत देनी चाहिए। साथ सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म समझ लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कॉर्पोरेशन अलग होता है, कोऑपरेशन, क्या बोला? कोऑपरेशन। हाँ, फॉर्मेशन, इसका चार्टर कहां पे साइन हुआ था? द चार्टर वॉज साइन इन ढाका इन 1985। कौन बोला 1985? The charter of the SAARC nation was signed in 1985. So repeat करूं वैभव? The charter was signed in Dhaka in 1985. ढाका किसका कैपिटल है? हाँ. There are total 8 nations in the group. अफगानिस्तान, આને આવડે છે બરાબર, એટલે બાકી આટલું એક્ઝેક્ટ આવડે છે, આઈ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. ओके ओके गाइस, स्टार्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, फिर ईस्ट साइड आओ धीरे धीरे, तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, उसका बेस्ट फ्रेंड इंडिया, ठीक है, फिर इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है? नेपाल, भूटान,
है कि नहीं? और हमारा एकदम खास भाई बन चाइना नहीं भाई, आमा साउथ एशिया, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इंडिया के बाद कौन? बांग्लादेश। फिर ब्रेक मार देने की, देखो समझ लो, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उससे उससे ही समझ आएगा। द मोमेंट यू गो फर्दर डाउन बांग्लादेश, म्यांमार से, दैट रीजन इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एशिया। समझ रहे हो? आप एक बार बांग्लादेश से ईस्ट और गए, म्यांमार ऑनवर्ड्स, ऑल दोस रीजन आर कॉल्ड साउथ ईस्ट रीजन। ठीक है, उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के पास। ठीक है, इतना समझ गए? लेकिन और दो बच गए। कम टू द southern side, two islands of Maldives and Sri Lanka. For सिर्फ इतना लिख लो, in 1981 all these countries met for the first time, एक बार बैठे। ठीक है, और फिर चार्टर कब साइन किया? 1985 में। अफगानिस्तान became member in 13th summit in 2005। समिट समझ गए ना क्या होगा? हर साल पार्टी करने मिलते हैं। ठीक है, कि भाई तू आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ठीक है, सो इन द 13th summit in 2005 Afghanistan became the newest member of SARC। है, बट मैं आ रहा हूं सार्क पे अटेंशन हियर। सार्क पढ़ना जरूरी है, बट इन एक्चुअल वर्ल्ड सार्क इज अ टोटली डिफंक्ट बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। विच ईयर? 2005। समझ लो, सार्क इज अ टोटली डिफंक्ट बॉडी। After 2018, in 2018 or 19, after this attacks of Uri and Pulwama, we stop engaging in this region because of the presence of Pakistan। ठीक है कि भाई, और वैसे भी Pakistan has, because of the ongoing tussle, made this body quite defunct। कुछ काम कर ही नहीं सकते हम इसमें। ठीक है, so last meeting was supposed to be held in पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लेकिन इंडिया जाने से रहा। और अगर सार्क में इंडिया नहीं है तो इस ग्रुप में कुछ बच्चा है, आप लोग देख लो। ठीक है, सो हाँ, सो इफ इंडिया इज नॉट गोइंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद द नेबर्स। सो इंडिया के पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? बिम्स्टेक। लिखो, BIMSTEC। BIM, अरे इसका ये लिख लो, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, ये लिख लो भाई। हाँ, काठमांडू। वेरी गुड। ठीक है भाई, अभी इसका लिखो, मैंने वो बोला वो तो लिख। सार्क का कैपिटल, सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, BI, पहले फुल फॉर्म तो शॉर्ट फॉर्म तो लिखो, BIMS। आ लोग अवाज करे थे ऊपर वाला जे बी છે તમે લોકો ના કરો બરાબર। BIMSTEC बराबर। फुल फॉर्म लिखो, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
इसमें कितने मेंबर्स हैं? 7। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से समझो, पाकिस्तान तो नहीं होगा, आई जस्ट गिव यू द रीजन, लेकिन इसका नाम क्या है? ध्यान से समझो, बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स countries which are littoral states, littoral मतलब who shares a maritime boundary with Bay of Bengal will be a part of this organization। तो अभी सोचो, अफगानिस्तान आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता है। ठीक है, 2 मेंबर तो चले गए, 6 बज गए सार्क के। वो मेंबर्स है, लेकिन उसमें से भी अभी एक चला जाएगा। कौन जाएगा? थोड़ा ध्यान लगाओ। मालदीव्स चला जाएगा, बिकॉज मालदीव्स इज इन द इंडियन ओशन, तो वो बे ऑफ बंगाल में नहीं आएगा। 3 चले गए, रहे कितने? 5। ऑल दोस 5 मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस बिमस्टेक। कौन चला गया? मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बाकी के 5, मतलब इसमें भूटान एंड नेपाल आर ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टोटल 7 कंट्रीज है इस ग्रुप में, 5 हो गई। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ बेस्ड क्वेश्चन। विच बिग कंट्रीज आफ्टर इंडिया शेयर्स देयर बाउंड्री विथ बे ऑफ बंगाल? और बांग्लादेश। हो गए 7। सिंपल। कौन शेयर करता है? 5। 2 3 4 5 हो तो गए। देखो भाई, इंडिया, मेरे को कंफ्यूज मत कराओ, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। 8 में से 2 गए, 1 ऐड हुआ, 7। 3 निकाले थे मैंने, 2। म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, 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 म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार एंड थाईलैंड। यस यस यस, थाईलैंड। गूगल है जड़दू, तो दिमाग लगाओ पड़े। मैं भी लगाऊं कि भाई सूझ है अर्जुन। थैंक यू। ओके, देखो थाईलैंड। नाउ एक चीज याद रखना, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे होगा? ढाका में। लिखो, ढाका। कैपिटल सेक्रेटेरिएट। सार्क का कहां पे हमने पढ़ा? इसका कहां पे? ढाका पे। इन 2004, सॉरी चलो पहले तो स्टार्टिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन 1997 बाय अ डेक्लेरेशन कॉल्ड बैंकॉक डेक्लेरेशन। ये अलग डेक्लेरेशन છે, 1997 એ બી ભણાવું છું આરામથી। લા બહુ ગરમી લાગે છે આજે યાર। ભાઈ અંદર અંદર વાતો નહીં, મને કઈ ડાઉટ હોય મને પૂછો, રિપીટ કરીશ। 1997 this organization was formed। in 2004 Nepal and Bhutan were added to this organization। पहले इसको BISTEC कहते थे। ध्यान से सुनो, लॉजिक है, लिखने की जरूरत है। BISTEC। ये BIST कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बट म्यांमार ऐड हुआ इन 1997 आगे जाके, तब जाके क्या हो गया? MB अंदर आ गया। प्लीज सिंपल थिंग टू रिमेंबर, सार्क और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सारी अच्छी अच्छी बातें, वेलफेयर, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज,
प्रमोट एजुकेशन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, योर इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। भाई टेररिज्म कम करेंगे, एक्सट्रीमिज्म कम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। वर्ल्ड का सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इज साउथ एशिया। Before British, it was the most integrated region of the world. Right now, after their going, we are the least integrated. Integrated मतलब a country can only prosper if they are doing trade with the neighbors. अगर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है धंधा करने के लिए, then it is not quite competitive. यूरोप देख लो, a totally integrated region. साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत इंटीग्रेटेड है, but South Asia least integrated. Understood? So what are the objectives of this organization? All the good things. सारी बेहतरीन चीजें हम करेंगे। एंड याद रखना, इन दिस पार्ट बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल आता है। दैट मीन्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर, दैट इज वन ऑफ द की पिलर्स। जब भी कोई ओशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। अगेन बे ऑफ बंगाल है तो क्या होगा, वी विल प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेस, उसे क्या कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी। मैं आज भी कहता हूँ, पहली बार हम सब मिले, कि एक एक वीडियो रोज देखना पुराने, लाइक अ मेडिसिन। तो थोड़ी लाइफ आपकी इन जीके आसान रहेगी। एक साथ करने की लोगों की आदत होती है कि यार एक बैठ के मैं सब कुछ कंप्लीट। ये इन्फॉर्मेशन आप पहली बार पढ़ोगे मोस्ट ऑफ दोस्त, तो इतनी आसानी से दिमाग में नहीं जाएगी, बिकॉज इसमें कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं होता। इट इज़ जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हाँ, किसी को मारना है सर? नहीं हाँ, तो बच्चों को दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, समझ गए। सो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 दिन पढ़ लूंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे तो शायद दिमाग में जाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलो आज मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे थोड़ा ब्रेक रखते हैं, बिकॉज अगर मैं बाकी जीके इज नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लेना है? यू गाइस कैन सजेस्ट मी, मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको। जो न्यू करेंसी डेवलप कर रहा है उसके पीछे का कोई रैशनल बता दो। ब्रिक्स अभी तो टाइम लगेगा। यू कांट डिस्क्लोज यूएस डॉलर लाइक दिस, ओके? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ओके, चलो पे अटेंशन गाइस, यू कैन ऑलवेज सजेस्ट मी। अभी आप बोलो, आप मुझे मेल कर देना, ईमेल आईडी भी आपके पास, कि सर ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास कोई है दिमाग में? तो मैं अभी वो आज ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज देन यू गाइस विल बी कंफ्यूज्ड कि हमने क्या पढ़ लिया, कितने कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, recognition to political parties। नहीं, वो अलग है, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना। टेक्निकल टॉपिक है recognition to political parties। डू यू गाइस नो मैं कौन से इशू की बात कर रहा हूँ? मुझे सिर्फ इशू समझ नाम चाहिए कि मैं कौन से चीज को पढ़ाने वाला हूँ। अरे यार सर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कांग्रेस फाइल्स भी कुछ चालू किया था, राइट? क्या?
इंडियन गवर्नमेंट में जैसे मोदी का मन की बात थी वैसे ही कुछ लाइक कांग्रेस फाइल्स एवरी वीक एपिसोड या कुछ रिलीज करते हैं लाइक दे टेल हाउ मच कांग्रेस हैज लूटेड इंडिया ओवर द स्पैन ऑफ 70 इयर्स। डू यू थिंक दैट दिस टाइप, मैं वही कह रहा हूँ, डू यू थिंक दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन देखो एग्जामिनेशन? ना तो इन जनरल हाँ मैं बोल रहा ही नहीं, amusement। ऐसा कभी कुछ नहीं पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, उनको करने दो पॉलिटिक्स। If somebody is saying that party has looted India for 70 years, then I think we should plainly say that हमारे forefathers of the last 70 years, they must be stupid. बोलना चाहिए हमें, बेवकूफी होंगे तभी हर बार कांग्रेस को सिलेक्ट करते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि या आत्मज्ञान कहते हैं उसे कि बैठे बैठे हमें एक दिन में सब कुछ पता चल गया, ठीक है। So these are political news. उससे हमें recognition to political parties लिखो. Now understand what I am trying to say. I am talking about the issue of Shiv Sena. Okay. Now हाँ लॉ रिलेटेड है इसलिए शायद आपको इंटरेस्टिंग लगा। देखो ध्यान से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, और अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर क्वाइट लेटेस्ट। अभी समझ लो, recognition to political parties in India is given by Election Commission of India. Recognition to the political parties is given by Election Commission of India. Now there is also something called registered political parties. वो भी कौन देगा, कहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आप में से कोई पार्टी बनाता है तो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया को मतलब सब लूट ही रहना ऐसा सोचना हो। वे कोई अभी बताता है कि कांग्रेस लूट रहा है, तो इसके पहले को कोई बोलेगा ब्रिटिश ने लूटा, चलो ठीक है। हाँ मैं स्टोरी मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर किसी का मन नहीं भरा तो दे विल गो टू मुगल्स, देन दे विल गो टू द सल्तनत, देन उसके पहले, मतलब जो बोल रहा है वो इंसान ही अच्छा है, उसके पहले के सारे लोग बुरे हैं। जो लूट किए थे उनको खुद दे देते अपने हेल्प के नाम पे। चलो recognition means which type of recognition, ये भी तो समझना पड़ेगा। recognition इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो टाइप का देती है। एक आपको पता होना चाहिए, नेशनल पार्टीज का recognition देती है that this party is the national party of India, और एक recognition देती है स्टेट पार्टीज का। और ये recognition देने की पावर्स उनके पास कहाँ से आती है? RPA एक्ट ऑफ 1951। RPA एक्ट ऑफ 1951 रिप्रेजेंटेशन, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, PRA 1951। ये 1951 मैंने वेडनेसडे के लेक्चर में भी बोला था। 51 को बहुत इंपॉर्टेंट रखना बिकॉज देयर इज वन मोर लॉ विच इज RPA 1950, वो नहीं 1951, ठीक है। RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, सॉरी RPA। एक तो सवाल ना फॉर्मा आटला है, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। दो पार्टीज हो गई। लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने बताया था कि which will be the it will be मैंने बोला, अभी तक हुई नहीं है। राइट नाउ देयर आर 8 नेशनल पार्टीज। कौन सी है? होमवर्क। और 9th कौन सी है? 9th कौन सी होगी? आम आदमी पार्टी, ठीक है। And the same RPA gives power to Election Commission of India. The same power of RPA 1951 gives Election Commission of India the power to allot symbols and names to political parties.
कमल, द RPA Act of 1951 gives power to Election Commission of India, gives power to Election Commission of India to allot names and symbols to political party, to allot names and symbols to political parties. कमल किसका है? ठीक है, वो देने का पावर किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना समझ गए? अभी थोड़े अलग ट्रैक पे बट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देन आई विल शो द इम्पोर्टेंस। अभी एक और चीज समझ लो। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एन MP that he has to follow. For an example, a member of Congress cannot vote against the whip of his party. ध्यान से सुनना, whip मतलब हर एक पार्टी on the floor of parliament they issue directions that has to be followed by their MPs. समझ रहे हो? whip का काम क्या है? whip होती है ना, अभी सर लेके गए ना। whip क्या होता है? they instruct their MPs how they should vote, what topics they should debate, discuss, what policy positions they should take in the parliament. Now if you are not following those rules, then it is considered as voluntary. ध्यान से सुनना, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? वो आप लोग लॉ पढ़ोगे, जो भी पढ़ने वाला हो वो सब पढ़ना है। तो वो माना जाएगा that you are voluntarily acting in a way which shows that you are not a willing member of this party. समझ रहे हो? क्या लगेगा पार्टी को कि आप तो हमारी बात नहीं मान रहे हो, इन शॉर्ट, तो मेरे को तेरे संबंध मेरे को नहीं चाहिए। This thing, when you are not doing things that are stated by your parties, is considered as defection. क्या कहते हैं हम उसे? डिफेक्शन। अभी ध्यान से सुनो, एक ये तरीका हो गया डिफेक्शन का, when a person belongs to party A doesn't follow the whip of party A, ठीक है, लेकिन वो MP तो था पार्टी A का। सेकंड कंडीशन में some independent member जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, समझ रहे हो? आफ्टर बिकमिंग एन MP, if he is joining any other party, then again he will be considered as a defector. क्या हो गए आप? डिफेक्टर। कि भाई आप तो इंडिपेंडेंटली चुन के आए थे, लेकिन आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप क्या हो जाओगे? डिफेक्टर। थर्ड केस सिनारियो, ये 3 सिनारियो याद रखना, समझना। थर्ड में क्या होता है? देयर आर सम मेंबर्स व्हिच आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, है कि नहीं? ठीक है, अभी वो कौन सी पार्टी के? ये सवाल होना चाहिए आपको। हाउ मेनी मेंबर्स कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन 12? और कहां पे? लोकसभा या राज्यसभा? अपर हाउस। 12 मेंबर्स फ्रॉम साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है? तो अभी वो किसी पार्टी को मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और वो आपका डिफेक्शन भी नहीं कहलाएगा। बट कंडीशन क्या है? 6 महीने के अंदर, सपोज आज मुझे इलेक्ट कर रहे हैं कि आप 8 में बहुत आगे हो, आप आ जाओ, मेंबर बन जाओ, तो विद इन 6 मंथ आई कैन ज्वाइन पार्टी and I will not be considered as defected. But after 6 months, if I join any party, I will be considered as defected member. ठीक है? ये डिफेक्शन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ये क्लियर होगा डिफेक्शन क्या होता है? हाँ, तो डिफेक्शन की जरूरत क्यों इंपॉर्टेंट है? It directly affects the stability of the government. ये महाराष्ट्र में जो कांड हुआ, वो क्या है? डिफेक्शन को लेके कांड हुआ है, समझ रहे हो? कि भाई शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे के शिवसेना को बिलोंग नहीं करते, हमारा शिवसेना तो कुछ अलग है, समझ रहे हो? इन अ वे दे डिफेक्टेड। लेकिन ध्यान से सुनो, बट क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? जब आप डिफेक्ट होते हो तो आपको क्या कर देते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और स्पीकर इन द अपर हाउस और अपने विधानसभा, दे विल डिस्क्वालीफाई। क्या होगा? डिस्क्वालीफाई। ये जो इतने हुए 22-23, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है।
समझ रहे हो? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. अभी आप एक लिखो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स. बाकी वाले थोड़े फैक्ट से काम चला सकते हैं, थोड़े फैक्ट से, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है. इट्स इनेक्टेड इन 1985 और नाम क्या है? एंटी मींस डिफेक्शन करवाना है या रोकना है? रोकना है. वेरी गुड. एंटी डिफेक्शन लॉ इन 1985 was enacted to stop this defection. ठीक है? To stop this defection. और उसके लिए 85th सॉरी 85th सेक्शन से ज्यादा क्लॉज पे फ्लोर क्रॉसिंग होता है. लाइक अगर मैं पार्टी में मैं बीजेपी में हूँ तो इन सम डेज आई जॉइन कांग्रेस. that is defection. That is defection. हाँ, and crossing the floors as if that itself means defection. This is one candidate जिसने हाँ आया राम गया. हाँ, तो ये आया राम गया राम से वो आया राम गया राम महीने एक दिन में कुछ 4 बार पार्टी बदल ली थी. मतलब सुबह मैं कांग्रेस में हूँ, दोपहर में बीजेपी में आया, शाम को मैं वापस कांग्रेस में गया, रात में मैं वापस. तो तब से ये हमारे इंडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये नाम बहुत फेमस है, आया राम गया राम. ठीक है? हाँ, लेकिन अभी लिखो सो दिस लॉ वाज एनेक्टेड और उसके लिए हम एक लॉ लेके आए एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट एनेक्टेड 10th शेड्यूल. It enacted 10th शेड्यूल और ये सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के थ्रू की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बिकॉज फॉर दिस द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वेर अमेंडेड. कौन सा एक्ट है? 52nd CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. समझ गए? अभी तब ऐसा रखा था, ध्यान से समझना, 1985 में जब ये लॉ आया, 2 कंडीशन समझ लो, 2 सिनारियो समझ लो. अगर एक बंदा अकेला डिफेक्ट कर रहा है वो तो गया ही गया, समझ रहे हो? द स्पीकर विल डिस्क्वालीफाई हिम. कौन डिसीजन लेता है? स्पीकर. बट समझ लो कि इफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर डिफेक्टिंग, तो उसको उन्होंने बोला कि यार ये क्या है, हम चला लेंगे. बिकॉज द लॉजिक गिवन बैक इन द डे वॉज दैट यू कैन ब्राइब 1 पर्सन, 2 पर्सन. बट आपके 30 MP में से अगर 10 MP है तो उनको हम ब्राइब ऐसा लॉजिक था उस जमाने में, तो हम उसे क्या करेंगे? मर्जर. तो वी विल नॉट कंसिडर 1/3 एज डिफेक्शन. समझ रहे हो? सो मतलब 1985 में 1/3 से ज़्यादा कोई डिफेक्ट करता था तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था. समझ रहे हो मैं कब की बात कर रहा हूँ? 1985 की. हाँ भाई वो सर ये नो कॉन्फिडेंस को लीड नहीं कर सकता ये? बात ये अभी मेरे को. हाँ, फिर क्या हुआ? लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि अब तो क्या 500 MP भी खरीद ले कोई बैठ के. ठीक है? सो इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 को बना के कर दिया 2/3 कि अब मिनिमम 2/3 डिफेक्ट करेंगे, देन वी विल नॉट डिस्क्वालीफाई देम. समझ रहे हो? द प्रोविजंस वेर मेड स्ट्रॉन्गर. पहले 1/3 को ही चला लेते थे कि हाँ भाई हम 1/3 को क्या करेंगे? मर्जर, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे. अब अगर 1/3 भी मर्जर करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, तब भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड. Now what is the requirement? 2/3. 2/3 अगर डिफेक्ट करते हैं, then no disqualification for them. And this is the reason that all those 22 MPs of Shiv Sena were not disqualified. तो उसके टोटल क्या होगा?
स्मूथ था, ज़्यादा था। और आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, समझ रहे हो, मैं आपको सिर्फ आपकी एग्जाम के रिलेटेड जो है फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज ये वॉल्यूंटरी को लेके तो इतने सारे, ये जो मैंने अभी वॉल्यूंटरी मेंबरशिप देने की बात की ना, n number of cases are pending in Supreme Court. कि what do you mean by voluntary? अगर आज कोई कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन, if he supports any policy of the government, जो करनी चाहिए on if it is good, so should we consider that as defection? So there are number of problems with the interpretation of this voluntary. लेकिन वो सब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ जितना ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था 2/3 वाला हो गया। सो ये केस, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया शिवसेना में? शिवसेना मतलब शिवसेना, आप किसकी शिवसेना? शिवसेना जो उनका तीर है, जो नाम है, वो किसको देंगे? बिकॉज द फैक्शन who defected, they say that we are the actual representative of the ideas of the party and the will of the people. ये उद्धव ठाकरे वाला नहीं है, ठीक है। So this case right now is being adjudicated in the Supreme Court of India. घर पे जाके YouTube में देखना, एक साइड कपिल सिब्बल झगड़ रहे हैं, एक साइड हरीश साल्वे झगड़ रहे हैं। अगर मजा है, किसी दिन बोर हो तो देख सकते हो उस जगह से, वेरी फाइन आर्ग्यूमेंट्स बाय ऑल दिस पीपल्स, ठीक है, समझ गए। तो अभी ये डिसाइड कौन करेगा, समझ रहे हो, कि शिवसेना पार्टी का सिंबल और नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये नाम और सिंबल को लेके भी केस कहाँ पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने नाम तो अभी अगर देखने जाए तो दोनों फैक्शन ने नाम थोड़े थोड़े बदल लिए, वो आप देख लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्शन। एक बात याद रखना, मेन थिंग, जुडिशियल रिव्यू पता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आप में से कौन लॉ की एग्जाम दे रहा है? जरा हाथ ऊंचे करो जिसको लॉ करने आएगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है मींस Yes. Judicial review as in, is this decision taken by any branch of the government is open to be challenged in the Supreme Court. पहले ऐसा था इसमें that decision of the speaker is final. But Supreme Court said, आप पागल हो गए हो क्या? ओरिजिनल तो भाई लोग हम ही हैं. So Supreme Court, so the decision of the speaker is open to the judicial review. Is open. The decision of the speaker is open to judicial review. By judicial review is the most important thing मेरे हिसाब से जो इंडिया के पास है, वरना बहुत लफड़े हो जाते, ठीक है। શું છે दोस्त, कई क्वेश्चन? अरे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? सिडनी? पक्का पक्का? साउथ कोरिया? बाप रे, आने लगा है तो चलो थोड़ा हार्ड पूछते हैं। मैडागास्कर? मुझे लगा अभी आ रहा है तो आई थॉट आई वाज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट। मैडागास्कर का नहीं पता। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैनिला कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वैनिला मैडागास्कर में, ठीक है। और उसका कैपिटल है आनामांतिरो, ऐसा कुछ है, याद आया? युगांडा? केन्या? भाई केन्या का क्या है? हाँ यार, मतलब केन्या का आना चाहिए। हाँ भाई, ये गूगल करके जो भी आंसर दे रहे हैं, हाँ वो तो ये थोड़ी चाल है, तो फोन ओपन करे के बुक ओपन करे यार, बराबर से। चलो Who is the first US president in the
આને કહેવાય ઉત્સાહિત ખોટો આન્સર. તમે મારે ક્વેશ્ચન તો કમ્પ્લીટ કરવા દો. હુ ગોટ ઇન્ડિક્ટેડ એન્ડ ટ્રાઇડ ઓન ક્રિમિનલ ચાર્जेस? वेरी इंपॉर्टेंट. एक साल पहले मैं, हाँ ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है. नॉर्वे का कैपिटल, नॉर्वे का कैपिटल. ये वो ऑप्शन ना मिलेगी. मैंने आज तक यहाँ पे कभी ऑप्शन नहीं दिए. 4 साल से तो पढ़ा रहा हूँ. 4 नहीं, हाँ. सर 3 महीने पहले से तो आप पीडीएफ भी लाते थे, आप ऑप्शन दे दो. आपका आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है लेकिन सही नहीं है, ठीक है. भाई नॉर्वे का ऑस्लो है. स्वीडन का स्टॉकहोम. डेनमार्क सही है. चलो नेक्स्ट टॉपिक. इंडिया का कैपिटल पता है ना? When was this New Delhi capital was shifted by Britishers? पहले कौन सा था? कोलकाता. When did they shifted it? इंडिया की बात कर रहा हूं मैं भाई, और ये भी आपकी आईक्यू की बुक में दिया है. वेरी गुड अंश. सो वो पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिल्ली दरबार हुआ था इन 1911. जॉर्ज फाई एंड क्वीन मैरी वो आए थे इंडिया, एंड इन दिस दरबार इट वाज अनाउंस दैट वी विल शिफ्ट अवर इंपीरियल कैपिटल टू दिल्ली. ठीक है, दिल्ली जाने का नहीं, वरना तकलीफ हो जाता है. ठीक है, बिन बुलाए नहीं जाने का दिल्ली कभी. ये याद रखना. 3 दरबार हुए थे एंड दिस इज फैक्चुअल, मतलब ये आपका फैक्चुअल जीके है. ठीक है, चलो मैं दूसरा कौन सा लॉ का पढ़ना था, ये तो हो गया. और कौन सा टॉपिक है? हाँ हाँ हाँ, चलो भाई लिखो. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. શું છે યાર? બોલો યાર. તો યાર આપણે કંઈ સમજાવો. આપણે તો એકલા કોઈ દિવસ કંઈક છે. એકલા એકલા હસવાનું નહીં. હા, જો મને હસવું આવે તો પછી. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये राइट टू इंफॉर्मेशन करके कुछ पता है आपको? हाँ हाँ, वेरी गुड. आरटीआई पता है ना? वो उसने भी एक बॉडी बनाई थी आरटीआई ने. दोज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज. दोज बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. समझ रहे हो? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हर बार एग्जाम में पूछते हैं. वो क्या है? एनी आइडिया? नहीं. हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. व्हाई? बिकॉज लॉ लाए गए इन 1993 टू एनेक्ट दिस बॉडी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. लिखो. And on what reasons we say it is constitutional? Because it is mentioned in Article 324. ठीक है, फटाफट बताता हूँ. बहुत ज़्यादा इसमें टाइम खर्चना करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बहुत पहले पढ़ाए थे ये टॉपिक, तो आप उसको भी ऑनलाइन देख सकते हो. देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी काम क्या करती है? सुपरिटेंडेंस एंड oversight of the elections conducted in India. 4 type of elections are necessary. 4 type of elections are conducted by ECI. First is Lok Sabha. ठीक है. Next is Parliament. Then next is state assemblies, president and vice president. अरे मने पूछो, હું एकदम સાચો આન્સર આપીશ ક્લેરિટી વાળો. બરાબર છે? 4 का हो गया. चलो आगे लिखो. इट इज अ 1 member बॉडी सिंस 1950. यस,
ये मैंने डिटेल में पढ़ा है, अभी सिर्फ थोड़ा पढ़ रहा हूँ, घर पे जाके पुराने लेक्चर्स देख लेना. बट इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी इन 1989 बिकॉज इस जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी. द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18. सो टू डील विद द इंक्रीज वर्कलोड 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, और जो मेन बंदा था उसको क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. समझ रहे हो? ओ भाइयों, આગળ બેસાડ દઈશ હા, અંદર અંદર વાતો નહીં કરવાની. 1989. ઠીક હે, તમને અલગથી કહું, અવાજ નહીં કરવાનો, બધા સાંભળવામાં તકલીફ થાય. મને પૂછે જ કહું છું ને, બરાબર? ચીફ ઇલેક્શન કમિશ્નર એન્ડ ઇલેક્શન કમિશ્નર, ठीक है. एंड द इम्पॉर्टेंट एक्ट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उसने क्या किया? वोटिंग एज रिड्यूस कर दी. अभी आप लोग वोट दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? ठीक है, हाँ, तो कार्ड बार कढ़ावो पड़े, एमने ना जवाय वोट आपवा पड़े, बराबर. हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, दे कंडक्ट ड्राइव्स जो एडवांस में आपका नाम ले लेते हैं. आपका 18 बर्थडे आने वाला उसके पहले, तो उसमें आप अपना पंजीकरण करवा लो. पंजीकरण माने रजिस्ट्रेशन, ठीक है, समझ गए? बट द प्रॉब्लम वॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 61st. આ વાતો ના કરીએ તો યાદ રહ્યું હોત, बराबर. हाँ, देखो यार, मैं भूल गया ना इसमें, क्या कह रहा था मैं? हाँ, so the problem here was the appointment of the chief election commissioner. अपॉइंटमेंट में क्या इश्यू है? that the chief election commissioner is supposed to be appointed on the recommendation of, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट को रेकमेंड कौन करेगा? बाय अ कमिटी ऑफ 3 पीपल. उसमें कौन बैठना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. The committee needs to be a 3-member committee, which is Prime Minister of India, Chief Justice of India. अल्टीमेटली तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. नहीं, प्रेसिडेंट की कोई औकात ही नहीं है. इंडिया में प्रेसिडेंट बनना मतलब बोरिंग काम करना. फाइल जाती है, उस पे साइन करने का और भेज देने का, ठीक है. ऐसा बोरिंग भी नहीं है, खाली ऐसा मत कहना यार, थोड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ. यस તમને લોકોને બી અહીંયા આગળ બોલાવ્યો. કોઈ કઈ કરતા નહીં, જલ્દી જલ્દી આવી જાય. Okay. Team member. But what the issue was that in order to be recognized as a member of leader of opposition, you need to secure 110 seats in parliament. समझ रहे हो? तभी आपको recognize किया जाता है as leader of opposition. Issue क्या आया? Some parties don't even have this 110 majority. Right? Majorities is 110 वाली, हाँ, दूसरी नहीं. So the issue was, अब क्या करेंगे? So in a way, executive started misusing this void. वो क्या करने लगे? अपने मनपसंद भाई बहनों को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट करने लगे. सो अगेन ये केस कहाँ पे चला गया? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज लाइक द बड़े भैया और द बुजुर्ग ऑफ द फैमिली. ठीक है, जो भी बच्चे लड़ते हैं तो डायरेक्ट केस फिर कहाँ जाता है? ऊपर. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड कि देखो भाई, 3 लोगों को बिठाना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, द सेम 3 people. And if you don't have a leader of opposition, then the party which has secured the highest seat, a representative from them should be considered in the 3 persons committee, and then they should send nomination to the president.
प्रेसिडेंट का काम इतना भी बोरिंग नहीं होता। कल उन्होंने सुखोई उड़ाया, ठीक है, सुखोई, इट्स अ फाइटर एयरक्राफ्ट रशियन मेड, और कल उन्होंने आसाम के तेजपुर नाम की जो जगह है, तेजपुर एयरबेस, वहां से शी फ्लू सुखोई, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी का जो मैंने पहले बोला वो लिख लो। यहाँ चिंता ना कर, नेक्स्ट टाइम થી આ બધા લોકો પાછળ જશે ને આખી બેચ ખાલી રાખીશ, અને તમને લોકોને જેને બી વધારે વાત કરવાની ઈચ્છા હોય એમનું આગળ બોલાવીશ, મને વાત કરવી ગમે છે, રાઈટ બોલે અત્યારે જ બોલાવી લો અને અહીંયા બાજુમાં બેસાડીશ, હા, વધારે પ્રેમ વધી જશે મારો, હા। हो गया, नेक्स्ट, जल्दी लिखो। ओके, नेटो, नेटो, NATO, नाटो भी लगी सको, Oscar winning song, Nato Nato. Okay. I saw that wonderful meme that Putin was watery eyes, and he is like, even India is saying NATO NATO as in Nato Nato. So you know Putin has a fundamental objection with NATO, and NATO NATO, the song is NATO NATO, so that's why it's a nice meme. So Putin was with watery eyes, like, you know, even India is now saying NATO NATO. Okay. फुल फॉर्म क्या है? Not an activity organization. आगे आइए। ना 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 जल्दी 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 ना फर्स्ट में। चलो 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 जल्दी। क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लिखो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब भी मस्ती मत करो, 2 महीने, सच कह रहा हूँ, ठीक है, बाद में करना। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एनी आइडिया व्हेन इट वाज फॉर्म? 49. हाँ, 1949 1950। ओके, द ग्लोबल पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड ऐसा कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसका बॉस कौन है? अमेरिका नाम का देश है, ठीक है, हाँ। सो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब क्या है? दैट तुम लोग मेरे एक भी बंदे के ऊपर अटैक करोगे, देन इट इज कंसिडर एज वॉर अगेंस्ट ईच एंड एवरी मेंबर। ओके, सो नेटो का मेंबर सबको बनना है, बिकॉज इन अ वे आपको आपका ओवरलॉर्ड कौन है? अमेरिका। दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू द प्रोटेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रशिया ऑलवेज वांटेड दैट इट्स बॉर्डर्स शुड बी फ्री ऑफ दोज कंट्रीज विच आर अ पार्ट ऑफ नेटो। यूक्रेन को पता नहीं क्या खुजली है, मुझे आज तक पता नहीं चला, आज तक, कि उनको नेटो का मेंबर बनना ही बनना है, ठीक है। Putin's only genuine request all these years कह रहा हूँ, मतलब I think since 1998 he became prime minister first and best president, his only issue is that Ukraine should not join, मतलब इतना भी रिक्वेस्ट है। But Ukraine would want security for its own. पर रशिया कुछ करता मिली सिक्योरिटी ज्वाइन करके ना करके, रशिया सिक्योरिटी तो दे रहा था by telling them not to join। हाँ। दिक्कत क्या है? तो बदले में क्या मिल रहा है? अभी ज्वाइन किया तो क्या मिला? But See, emotions aside, international relationship doesn't work like this. If Ukraine, अगर आपको नहीं पता होगा, that was occupied by Russia under the rule of Catherine the Great, वो आपको जानने की जरूरत। Since then, it has been a very integral part of Russia.
अभी अभी मैं जब आ रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल मैं आ रहा था मेल पे कि फिनलैंड विल बी द न्यू मेंबर ऑफ नेटो. रशिया हैज सेड नथिंग अबाउट इट बिकॉज रशिया डजंट केयर अबाउट हाँ भाई चलो कर लो. But not with Ukraine, because with Ukraine they have very close cultural ties. There are many Russian people staying inside Ukraine. That's not the case with Finland. So because of all these reasons, he was against Ukraine joining NATO. कि तुम लोग मत करो. लेकिन चलो अभी ये जो भी है स्टैंड अप कॉमेडियन उसको करना है तो करें, देख लेंगे. But the point here is Sir, anybody look at Cyprus ने एक बार करे तो रशिया इतना इतना कर साइप्रस में तो लॉन्ग बैन, वो बैन. साइप्रस हालांकि ने मतलब सारा क्रीमियन हिस्सा पेनिनसुला में क्रीमिया माना. लगा. He is talking about Crimean Peninsula. क्रीमिया, हाँ. हाँ. That is again politics next time. But it's very important strategic point for Russia. जो of course रशिया को कैप्चर करना चाहिए. Very pro Russia in this. So पता नहीं क्या है, ठीक है. चलो, but coming back to the point. So NATO. So every country wants to join NATO. आपका क्या question होगा सबसे पहले? The last member to join NATO. The last member to join NATO. फिनलैंड रिसेंटली हुआ है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है फिनलैंड के पहले कौन था लास्ट मेंबर. एंड यूएसए हैज ब्रोक देयर प्रॉमिस मेड टू द रशियन counterparts. USA said even after the fall dissolution of the Soviet Union that we will not extend NATO in the east. But USA had only done that. So अभी वो इंसान कंटाल के ये सब कर रहा है, ठीक है, उसको कोई शौक नहीं है. They have USA slowly सबको अंदर लेके जा भारत में रहे यूएसए हैं. को कॉम्बैट करने के लिए नहीं रहा तो फिर मतलब क्या? वही. So that is the strategic argument given by the Russian side. Yes, see, we have made all the things that were problematic to you defunct. Warsaw Pact, NATO के against. We don't have that. We have even granted independence in a way to all these countries. तो आप भी NATO रखने की जरूरत क्या है? They say that NATO shows the mindset of the West against Russia, which is true. Okay, but coming back to the point, Finland recently, no, but Finland के बारे में जानना क्या जरूरी है? To join NATO, it is a work of consensus. ध्यान से समझना, ये समझनी जरूरी है. NATO का मेंबर ऐसा ही नहीं है कि NATO की जो कंट्रीज है उन्होंने डिसाइड कर लिया 5 कंट्री ने मिलकर. Every member has to say yes to admit a new member. Now, the bid of Finland was stopped by all this time Turkey. Turkey was the main country objecting the entry of Finland in NATO. अभी आप सोचोगे कि टर्की को क्या लेना देना फिनलैंड से, बिकॉज टर्की आर्ग्यूज दैट फिनलैंड इन अ वे सपोर्ट्स सम कर्डिश ऑर्गेनाइजेशन. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, वो नहीं पूछेंगे आपको. टर्की क्या आर्ग्यूमेंट करता है? कर्डिश इज अ एथनिक पीपल स्टेइंग इन टर्की, जिनको कर्डिस्तान चाहिए. कर्डिस्तान, वी वांट आवर ओन प्लेस कर्डिस्तान. टर्की क्या कहता था फिनलैंड को कि आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो तो मैं तेरे को नेटो का मेंबर नहीं बनने दूंगा. ओके, बट आफ्टर सम नेगोशिएशन टर्की हैज सेड यस एंड फिनलैंड इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नेटो. आपका काम क्या है? फिनलैंड में एक रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है. हु वाज द फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सना मरीन. माय गॉड, किसी को नहीं पता. सना मरीन, शी रिसेंटली लॉस्ट हर इलेक्शंस. ये एक क्लैट में पूछा था ये क्वेश्चन, तो मेरे को लगा अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैं क्लास में काफ़ी कहता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ उसका, क्योंकि जीके है तो वो तो कहीं से भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे ऑन सिमिलर पैटर्न्स, ठीक है. उसमें उसके बारे में पूछा था. सना मरीन रिसेंटली लॉस्ट द इलेक्शन. आपको ये देखना है नया प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि इसी ने ट्रीटी साइन की होगी, ठीक है, लिख लो. और फिनलैंड के पीछे लाइन में खड़ा है मेंबर बनने के लिए स्वीडन. स्वीडन भी अभी आगे जाके मेंबर बनेगा नेटो का. Both these countries strictly followed non-alignment all these years. We will not give any privilege to the West or to the
Russia. But now Russia invaded, so they sided their ways, they parted their ways. ठीक है. टर्की का प्रेसिडेंट कौन है? इक्वली इंपॉर्टेंट. अर्थक्वेक भी आया था, पूछ सकते हैं. क्या आया था? एग्रोगेन. रिकैप एग्रोगेन. ठीक है, लिख लो. एग्रोगेन प्रेसिडेंट. हाँ बस एग्रोगेन. जे भी मतलब यार वो टर्की नेम है, मेरे को भी नहीं पता. EDROGAN. અરે યાર સમજાવું યાર આ લોકોને કઈ રીતના. ભાઈ નામ ખબર પડશે ને, આવા બીજાના નામ તો નથી આવડતા મને, ખાલી મારા જ આવડે છે આપણા ઇન્ડિયાના નામો. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ. And one more thing to remember, Turkey last year only changed their name. It is called Turkey. ठीक है, ये भी याद रखना. टर्की ने पिछले साल ही अपना नामकरण चेंज करके, योगी आदित्यनाथ की आत्मा आ गई होगी उसके प्रेसिडेंट में, उन्होंने क्या बोल दिया है? तुर्की. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लिखो. शेरपा के बारे में हमने पढ़ा. द सेकंड मीटिंग ऑफ द शेरपा, पहली वाली कहां पे हुई थी? उदयपुर में. सेकंड मीटिंग कहां पे होगी? कुमारोमन, केरला. कुमारोमन. कुमार અને ઓમન લખી દો. કુમાર તો ખબર છે ને કેમ લખાય, અને ઓમન OMAN. બરાબર. केरला. शेरपा है. देखो छोटी चीज इग्नोर कर सकते हो सेकंड मीटिंग वाली, लेकिन जहां पे भी शेरपा की मीटिंग के बारे में लिखा हो, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये बड़े बड़े जो भाई लोग हैं, उनकी मीटिंग है अंडर G20, वो कहां पे हुई है वो आप डेफिनेटली पढ़ोगे. समझ गए? और ये आप देख लेना, डेप्यूटी गवर्नर्स एंड गवर्नर की मीटिंग भी होगी. गवर्नर कौन है अपना? हे भगवान, मेरे को टेंशन हो रहा है और कुछ नहीं. आपको हो ना हो, मुझे बहुत हो रहा है, क्योंकि अगर आप गवर्नर RBI का नहीं, क्योंकि पता है मतलब आप लोग पेपर के तरफ देखते भी नहीं होंगे. नहीं हाँ भाई, तुम दोनों को पता है यार, इधर से आवाज नहीं आया ना, क्योंकि 2 दिन पहले RBI, I think yesterday, they said that we have kept our policy rate unchanged. हाँ, पॉलिसी रेट, रेपो रेट. ठीक है, तो उसमें आता है हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. लिखो चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. मॉनेटरी चेयरमैन ऑफ द, यार ये बहुत बेसिक चीजें है यार. ठीक है, मतलब अभी मतलब आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल ऐसा आपको पूछ लेंगे कि इसरो का चेयरमैन कौन है, तब आप लोग वो भी गलत बात कर रहे हो. वही तो कह रहा हूँ भाई, के सिवन कब के जिंदा है, अभी है. ठीक है, ऐसा. हाँ, ये लिखो चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. दिस इज द कमिटी व्हिच डिसाइड्स दिस रेपो रेट्स. वो कौन होगा? गवर्नर ऑफ इंडिया शशिकांत दास. शक्तिकांत दास ऐसा कुछ नाम है. शशिकांत दास, शक्तिकांत दास. ठीक है, ऐसा कुछ है. शक्तिकांत दास. हाँ, दास 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 खमणी है ने. भूख लागी जाए तो मैंने खाओ पीवा यार. कांत. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ाया था, आप सब थे आई गेस, तो चलो मैं वही बता दूं. इसरो recently launched one of the heaviest payload rocket, which is called Launch Vehicle 3, and they sent satellites for one company. उस कंपनी का नाम? OneWeb. लिखो यार.
इसरो रिसेंटली, यार ये सारे ना माइलस्टोन न्यूज कहते हैं बिकॉज दिस वाज द हैवीएस्ट लॉन्च बाय इसरो अप टिल नाउ। और मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि ये रॉकेट इतना इंपॉर्टेंट है, दिस रॉकेट। और चलो एक बार और बता देता हूँ, नहीं मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, रॉकेट ऊपर सैटेलाइट को ले जाता है, ठीक है, पक्का पता है ना ये, उसमें से सैटेलाइट्स निकलते हैं आगे से। हाँ बस चलो, हाँ ठीक है चलो। हाँ तो वो हमने सबसे फॉर अवर ह्यूमन स्पेस मिशन जो हम करना चाहते हैं उसके लिए वी कैन नॉट सेंड PSLV, so for that we need heavier rockets which are called GSLV, geosynchronous launch vehicle. So this recently takeoff was very significant because it was one of the heaviest load uplifted by ISRO, ठीक है। सेम GSLV Mark 3 was used, लेकिन अभी उसका भी नामकरण करके उसको हम LMV कहते हैं, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। 3 और कंपनी का नाम OneWeb। OneWeb is just like Starlink project of Tesla। उनको क्या करना है, छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजने हैं and they want to give internet throughout the world। LVM लॉन्च व्हीकल LVM-3। घर पे जाके मेहरबानी करके PSLV और GSLV को थोड़ा देखना। आप लोग इसरो के बाहर से भी नहीं गुजरे लगते हुए यहाँ के, ठीक है। उसके बाहर एक रॉकेट लगाया हुआ है फुल साइज लाइव मॉडल, ठीक है, और उसके ऊपर अच्छे से लिखा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसरो का चेयरमैन लिखो, वो आप ढूंढ के लाओगे इसरो का चेयरमैन? मैं नहीं बताने वाला, आप लोग थोड़ी करो यार घर पे जाके। और मैंने गिन के 4-5 क्वेश्चन दिए, वो भी छोटे छोटे, ठीक है। वन मोर थिंग, रॉकेट बॉयज देखा आप लोगों ने? मतलब क्या इतना पढ़ते हो इसलिए नहीं देखा कि ऐसी चीजों में रुचि नहीं है आपको, ठीक है। सबके मार्क्स पूछूंगा, अभी कह रहे हो टाइम नहीं है, देखो। लेकिन इसरो का एक चीज पता होना चाहिए, इसरो वाज जस्ट अ कमिटी which is a very famous committee headed by विक्रम साराभाई, जिनको इन कोस पार कहते थे, इन COS कोस पार PAR, इंडियन कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, इन कोस पार। It was just a committee which was institutionalized in 1969 as ISRO, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने मान लिया है कि ये सारा चीज भी 2014 के बाद ही हुआ है, पहला ये सब नहीं हुआ होगा, ठीक है। In 1969, हाँ वो भी है, 1969, हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दैट वेयर इज द लॉन्च स्टेशन ऑफ इसरो? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सारे लॉन्चेस कहाँ से होते हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, ठीक है। वन मोर थिंग, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लिखो इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, it is a commercial, it is a government owned commercial arm of ISRO। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की, बट दे लुक आफ्टर द कमर्शियल बिजनेस। कमर्शियल मींस रेवेन्यू। ये OneWeb ने हमें ऑर्डर दिया कि आप क्या है हमारे सैटेलाइट्स डालो, पैसा लेंगे कि नहीं हम, ठीक है। तो वो कौन करेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। OneWeb इनिशियली वेंट टू रशिया कि इसको उड़ा दो, रशिया ने बोला हम कुछ और उड़ाने में बिजी है तो अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो OneWeb ने छोड़ा, कोई बात नहीं, इंडिया के पास चलेंगे, ठीक है। हम सस्ते से सस्ता काम देते हैं और अच्छे से अच्छा काम देते हैं, ठीक है।
So once New Space India Limited is the commercial arm, but it is still a government owned. ठीक है, चलो देखो, कंपेयर द कंटेंट, मेरी बात सुनो, बैठो बैठो, बुक बंद करने को। कंपेयर द कंटेंट दैट वी हैव कवर्ड ऑन वेडनेसडे एंड टुडे। आज वाला ज्यादा होगा, लेकिन अभी पीपीटी ही बनाओ। क्या है डिमांड? If you have any doubts and any topics that sir आप ये पढ़ाओ, ईमेल आईडी आपको पता है, आप मुझे मेल कर देना 2 दिन पहले, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके गाइस, पुराने लेक्चर्स देखना, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू। लेक्चर पति क्या बताना कुछ है? अरे तो તમારે પાસે એક લેક્ચર અટેન્ડ કરવાનું છે। ओके ओके गाइस, पीपीटी नेक्स्ट। थैंक यू सर। How did she tie up? मैं वो प्रेसिडेंट है, उसको थोड़ा लाइसेंस चाहिए। So still laws apply for everyone. अरे नहीं, और ये लोग को उड़ाने उड़ाने नहीं, ये लोग बैठते हैं अंदर जाके भाई। हाँ सेकंड वाले नहीं हाँ पैसेंजर ऐसा ही बोलेंगे ना। फिफ्थ ना? सर मेरे को एक डाउट है, देखो मैं अब एनपैट आईपी मैट वो दे रहा हूँ 3, बेसिकली मेरी कोई भी एग्जाम में जीके तो है नहीं, तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या ये सब जो है वो जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा शॉर्ट क्यों करना है समय मैनेजमेंट मींस धंधे के लिए, सब जितना भी बखाड़ा हो रहा है धंधे के लिए बात होता तो सही है, लेकिन में डिग्री भी हाँ और सर अरे डर डर है तो मेरे को पहले बोला मैं होता। मेरे को भी नहीं आती। हाँ लेकिन तू बोल भी अर्लियर है। हाँ हाँ ठीक है, नो वरीज। सर